بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے آج ہونے والے 14 اگست کے دن پر تقاریب جو ہوئیں اس پر پورے قوم کو مبارکباد دے رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ ملک جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جس نعرے پر قربانیاں دی تھیں، دیوبند سے جو تحریک شروع ہوئی انگریز کو بر صغیر ہند و پاک سے بھگانے کی، اور جس تحریک کے نتیجے میں اکابر علماء دیوبند نے بر صغیر سے انگریز کو بھگایا، اور جس کے نتیجے میں وطن عزیز پاکستان ہمیں 27 رمضان کی شب ملا، میں امید کرتا ہوں کہ اس ملک کا گہوارہ بنانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کا مرکز بنانے کے لیے پاکستانی قوم اپنی صلاحیت بروئے کار لائے گی۔ بدقسمتی سے ہم نے انگریز سے تو آزادی حاصل کر لی، لیکن یہ ملک پاکستان ابھی بھی اسلام کے لیے اور اسلامی قوانین کے لیے ترس رہا ہے، اور اس ملک کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز ہمیں میسر حکمرانوں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے۔ کراچی میں تھوڑی دیر قبل بم دھماکہ ہوا ہے، شہید ہونے والے اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو امن امان کا گہوارہ بنائے، اور ان ناپاک عزائم رکھنے والے عناصر سے ہمارے ملک کی جان خلاصی فرمائے۔ ٹھٹا میں بھیانک واقعہ ہوا ہے، معصوم بچی جو چند دن قبل فوت ہوئی، اس کی ڈیڈ باڈی قبر سے نکال کر اور اس کی تضحیک اور تذلیل کی گئی۔ انسانیت کا سر شرم سے جھک رہا ہے۔ ایسے لوگ کیسے اس دھرتی پر پیدا ہوتے ہیں اور رہتے ہیں اور اس طرح کے سفاکی کے عمل کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں۔ ورثاء کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں، ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام آپ کے اس غم میں آپ کے برابر کی شریک ہے، اور جو آپ قدم اٹھائیں گے جمعیت علماء اسلام ورثاء کے شانہ بشانہ رہے گی۔ نئے جو ساتھی ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ میری اس گفتگو کو شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ افراد تک میری اس گفتگو کو پہنچانے میں میری معاونت فرمائیں۔ ملک کے لیے قربانی دینے والے، تحریک آزادی میں کردار ادا کرنے اور قربانی دینے والے، 47 سے اب تک پاکستان کی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دینے والے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ان کے قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم ایک آزاد ملک میں موجود ہیں، لیکن ہمیں جد و جہد آزادی کو مزید آگے بڑھانا ہوگا۔ عزیزان محترم، آج میرے لائیو آنے کا بنیادی مقصد جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران سے درخواست کرنی ہے، اپیل کرنی ہے۔ میرے علم میں ہے کہ غربت اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے۔ عام آدمی کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا اور روٹی اور پیسے نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ قوموں کو غلامی سے، مشکلات سے نجات جد و جہد سے ملتی ہے، گھر بیٹھ کر نہیں۔
25 जुलाई 2018 से अब तक जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने और बिलखुसूस सूबे सिंध के कारकुनान ने जिस तरह इस तहरीक में अपना किरदार अदा किया है, सुनहरी हुरूफ से लिखने के मुतरादिफ है। यकीनन गरीब कारकुनान ने खुद खर्चा करके, गरीब कारकुनान ने अपने घर से अपने पैसे लगाकर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया, झंडों का इंतज़ाम किया, 5-5, 8-8, 10-10 दिन लॉन्ग मार्चों का इंतज़ाम किया और अपने ख़र्चे पर उन्होंने इस तहरीक में जान डाली। इस वक्त सिंध में आम बंदे और लोगों के पास पैसे खाने के भी नहीं, वो तहरीकों को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम बीमार होते हैं, अपने इलाज के लिए हम कर्ज़ा लेकर भी अपने इलाज के लिए अपना इंतज़ाम करते हैं, तो अब ये मुआशरा बीमार है। इस मुल्क के अंदर बाहर की कुव्वतों के ज़रिए लाए जाने वाले एजेंटों ने इस मुल्क को बीमार बनाने की कोशिश की है, इस मुल्क को मफलूज करने की कोशिश की है, इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क की जमहूरियत और पार्लियामान को, गरीबों का जीना दोबर किया है। सिंध की ज़मीनें बेची गई हैं, जज़ायर बेचे गए हैं, आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त अजीरन है। इन हालात से निकलने के लिए बहरहाल हमें इस तहरीक को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर हम रास्ते में रुक गए और थक गए तो शायद साजिश नासिर अपने मकासद में कामयाब हों। 29 अगस्त बरोज़ इतवार शाम 4 बजे मज़ार क़ाइद पर जलसा हो रहा है तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान व हुकूक़ सिंध, जिसमें हम इमरान खान के नाअहली पर भी बात करेंगे, इमरान खान को घर भेजने की भी बात करेंगे, अपने वोट की तक़दीस और हुर्मत की भी बात करेंगे, जहां हम दाढ़ी और पगड़ी, मस्जिद और मदरसे की भी बात करेंगे, गरीबों, मिस्कीनों, हारियों और मज़दूरों को उनके हुकूक दिलाने की बात करेंगे। वहीं हुकूक सिंध की बात करेंगे कि सिंध के जज़ायर आपके बाप दादा की मिल्कियत नहीं, आप कौन होते हैं हमारे जज़ायर बेचने वाले। सिंध की ज़मीनें आपके बाप दादा की जागीर नहीं, सिंध के हुक्मरान कौन होते हैं सिंध की ज़मीनें मल्टी नेशनल और नेशनल कंपनियों को बेचने वाले। आखिर क्यों कर बदीन से लेकर घोटकी तक अरबों रुपए की रॉयल्टी गैस और पेट्रोल से सिंध को मिल रही है, वो इस्तेमाल नहीं हो रही। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं एक सीरीज़ शुरू करूं और रोज़ाना लाइव आकर लोगों को सिंध का हाल दिखाऊं। लाड़काना से शुरू करूं, लाड़काने की गलियां, लाड़काना के रोड, लाड़काना के हस्पताल, लाड़काना के स्कूलों का हाल सिंध के और पाकिस्तान के और दुनिया के अवाम को दिखाऊं कि क्या तबाही की है सिंध के हुक्मरानों ने, सिंध की क्या तबाही की है उन्होंने। उनके अपने बंगले देखें, उनके अपने महल्लात देखें, उनका अपना रहना सहना देखें और सूबे सिंध का हालत देखें कि इस वक्त सवाए कचरे के ढेर के और कुछ नहीं। ताजिरों का जीना दो भर कर दिया गया है। कराची से लेकर कश्मीर तक ताजिरों से भत्ता हुकूमत वसूल कर रही है। वज़ीर आला खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि लॉकडाउन के नाम पर पुलिस की चांदनी होती है। इस वक्त सिंध कबाइली तकरारों में घिरा हुआ है। एक एक दिन में 11-11 बंदे कबाइली तकरारों के नज़र हो रहे हैं और सिंध के नौजवान कत्ल हो रहे हैं। अफरा तफरी का आलम है। हम अगर नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा। हम अगर लोगों की, गरीबों की, मिस्कीनों की, हारियों की, मजदूरों की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम अपने सिंध के हुकूक की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम वतन अजीज़ पाकिस्तान को नाअहल और नाजायज़ हुक्मरानों से निकालने के लिए जद्दोजहद और मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मंजिल आपकी है, मंजिल आपको मिलकर रहेगी, लेकिन उसके लिए मैदान में निकलना होगा, जद्दोजहद करनी होगी। अभी भी जो साथी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे इस मैसेज को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक पहुंचाएं। मेरा ये मैसेज पूरे पाकिस्तान के गली कोचे में और सिंध के ही एक एक कारकुन, एक एक जिम्मेदार, एक एक ओहदेदार तक पहुंचाएं कि मंजिल करीब है। हमें मुल्क के लिए, हमें पाकिस्तान के लिए, हमें आवाम के लिए, गरीबों, मिस्कीनों, हारियों के लिए, सूबे सिंध के इंच इंच की चौकीदारी के लिए, सिंध के अमन अमान के लिए, सिंध को कबाइली तकरारों की लानत से छुटकारे के लिए और सिंध को इन मुतबादिल क़ुव्वत और क़यादत फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। उसके लिए ज़ाहिर है कि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं। हम जमहूरी रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं अपनाएंगे। हमारे पास सियासी वर्कर के पास जलसा होता है,
जुलूस होता है, एहतजाज होता है, मुजाहरा होता है, अवाम की अदालत होती है। हम सिंध के हुकूक के लिए, पाकिस्तान के हुकूक के लिए, गरीबों, मिस्कीनों, हारियों और मजदूरों के हुकूक के लिए 29 अगस्त बरोज़ इतवार शाम 4 बजे मज़ार कायद कराची पर अवामी अदालत लगाएंगे। हम सिंध का केस, हम पाकिस्तान का केस, गरीबों, मिस्कीनों, हारियों और मजदूरों का केस अवाम की अदालत में पेश करेंगे। और बिलावल साहब के लोग कह रहे हैं कि सिंध में जलसा बिलावल साहब के बगैर कामयाब नहीं होगा। मुझे कल एक टीवी चैनल के एंकर ने मैं इंटरव्यू दे रहा था, मुझे कहा कि क्या पीपल्स पार्टी के बगैर आप जलसा कामयाब कर सकेंगे? तो ये मेरे लिए चैलेंज है, मेरी जमात के लिए चैलेंज है। मेरे साथ, मेरे वालिद के साथ, मेरी जमात के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ मोहब्बत करने वालों और सिंध का केस लड़ने वालों के लिए चैलेंज है कि ये हमें ताना दिया जाता है कि उनके बगैर हम जलसा कामयाब नहीं कर सकते। हमारे जलसे रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तने तन्हा भी हमने सिंध के तारीख के सबसे बड़े जलसे किए हैं। और 29 अगस्त को मैं अपील करता हूँ पूरे सिंध को कि निकल आएँ। पूरा सूबा सिंध में कोई कारकुन घर में न रहे, कोई जिम्मेदार, कोई ओहदेदार, कोई वर्कर, कोई मुहिब्बे वतन घर में न रहे। जिसका वोट चोरी हुआ है वो घर में न रहे। जो समझता है कि मेरी सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है वो घर पर न बैठे। जो समझता है कि मेरी सिंध के जजायर बेचे जा रहे हैं, सिंध की ज़मीनें बेची जा रही हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप घर में न बैठें। आप 29 अगस्त बरोज़ इतवार शाम 4 बजे मज़ार कायद पहुँचें और साबका अपने कायम किए हुए जलसों के रिकॉर्ड तोड़ें और कराची के तारीख का नहीं, सिंध के तारीख का नहीं, पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा जलसा बनाएं। जलसे में आने के लिए 4 बजे से पहले जलसेगाह पर पहुँचें, पहली दरख्वास्त। दूसरी दरख्वास्त, जलसे के आखिर तक वाखिर दावाना और दुआ तक आप ग्राउंड में रहें। उससे पहले आप सदर मार्केट घूमनी है, आपने सी व्यू घूमना है, आपने कराची घूमना है, या जलसे से पहले घूमें या जलसे के बाद। जिस मकसद के लिए आते हैं उस मकसद के लिए आप जलसेगाह में रहें। तीसरी बात, हर एक साथी के हाथ में जमीयत का झंडा होना चाहिए। कोई साथी जमीयत के झंडे के बगैर शिरकत न करे। और आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये कि आप ये मेहरबानी करें कि नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें और आपने गली गली में, महल्ले महल्ले में, यूसी में आज से कराची के जलसे को कामयाब बनाने के लिए, चाहे आपके पास पीडीएम का कोई ओहदा है या नहीं, आपके पास जमीयत का कोई ओहदा है या नहीं, अगर आप वाक़ियतन इस सिंध को इन जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कठपुतली हुक्मरानों से निजात दिलाना चाहते हैं, तो अपना किरदार अदा करें, निकल खड़े हों धरती के लिए, पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, गरीबों, मिस्किनों, हारियों और मजदूरों को उनके हुकूक के लिए, दाढ़ी और पगड़ी, मस्जिद और मदरसे के लिए, और अल्लाह के धरती पर अल्लाह के निज़ाम के लिए, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अपना किरदार अदा करें। और मैं आप तमाम हजरात का 29 अगस्त बरोज़ इतवार शाम 4 बजे मज़ार कायद पर मुंतज़िर रहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा जलसा मज़ार कायद कराची पर करेंगे। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। 4 बजे से पहले हर सूरत पहुँचें, 4 बजे से लेट न करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा हामी व नासिर, जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर साथी तक, हर कारकुन तक पहुँचाएँ, ताकि हम मिलकर इस मुल्क को इन मसाइल से निकाल सकें। कायद जमीयत, कायद पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में इस मुल्क को हकीकी मानों में इस्लामी फलाही रियासत बना सकें और सिंध को एक मरतबा फिर बाबुल इस्लाम बना सकें और सिंध को इन नाअहल हुक्मरानों से निजात दिला सकें। मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह सिंध के इंच इंच की हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सिंध के और पाकिस्तान के गरीबों, मिस्किनों, हारियों और मजदूरों को उनके हुकूक, उनके दहलीज तक पहुँचाएँगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।